Good morning friends, how you all are? I hope you all are happy. Welcome to you all in the next session of light. This is part 4 of light, and in this part we will discuss upon these topics: regular reflection, diffuse reflection and difference between both. So shall we start now? Okay. Whenever you look on a still water and mirror, you get your image. And on the other hand, when you look on the wall or on a piece of paper and on a piece of wood, you don't get your image. So why is it so? Why you are not getting your image in the case of these all surfaces which are given in the diagram, or you can say in the case of rough surface, जितनी भी rough surface है, if you are standing in front of these objects or surfaces, then you are not getting your image. क्या ये light reflect नहीं करते हैं? No, is it not true? They reflect light, but also we are not getting our image on these surfaces. So what is the reason behind it? So let's discuss upon it. As you can see in the image, there is a person or a girl who is looking at the mirror. Now she is getting her image into the mirror. Why? Because the rays which are coming from this object or this girl are hitting the surface of mirror and they are getting reflected in a particular direction. That's why we are able to see the image of this girl into the mirror. Okay, so let me explain it again. In the case of smooth surface, when the surface is complete smooth or polished, so in that case the incident ray which are coming from the object, and if they are coming in a parallel direction, then they get reflected in a same manner or in a particular direction. So this time this reflection is called regular reflection. Again, if any object is in front of the smooth surface or a plain surface which is completely polished, that time the rays which are coming from that object will hit the surface and they will get reflected according to first law of reflection in the same manner, or we can say in parallel manner. Okay, so this time this reflection is called regular reflection. On the other hand, in case of rough surface, as you can see in the mirror, this is what? This is a piece of wood. So in the case of this wood, the rays will come to the piece of wood, but they will not get reflected in this particular direction. Why? Because the surface is rough, so they will get reflected in scatter manner or in a different direction. So this time this reflection is called irregular, or we can say diffuse reflection. Okay, so now we will elaborate topic one by one, these both reflections. First, come to the regular reflection. What is regular reflection? As you can see in the image, this is what? This line is what? This is a plane surface. Okay, and these three rays are coming to the surface. These rays are called incident rays. Okay, and these rays are parallelly coming to the surface and they are hitting the surface. As we have discussed the first law of reflection, then we can just draw normal over here. Then we will see that all the reflected rays will go in the particular direction. They are going in a particular direction, and the reflected rays are also parallel to each other. ठीक है, जो incident rays है, they are also coming in parallel way, so the reflected rays will also go in the parallel way in the case of smooth surface. Okay, so this time this reflection will call regular reflection. ठीक है, now come to the next. What is, in what case we will see this regular reflection? So we will see this regular reflection in the case of smooth surfaces, as we have discussed earlier. So in the case of smooth and shiny utensils, we can see this reflection, and in the case of mirror also we can see this reflection. That's why we get our image in mirror. And if you see in shiny utensils also, then you get your image in that utensil also. So these are the common example of regular reflection. So what we can say about the regular reflection? When the reflection surface is smooth, जो reflection की surface है, it is completely smooth and well polished. As we have seen कि जो mirror था,
एंड जो शाइनी यूटेंसिल्स होते हैं, these are what? These are smooth and well polished. तो parallel rays falling on it, are they parallel to one another? वो अगर एक दूसरे से भी क्या है, पैरेलल है, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी लाइट की, दे विल गोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर. तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी और एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होगी. वी कैन समराइज इट अगेन कि जब कोई स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस होती है उस पर पैरेलल रेज जो है वो फॉल करती है, वो अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो उससे जो रेज रिफ्लेक्ट होगी वो रे भी क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी. सो इस टाइम पर जो रिफ्लेक्शन होता है, दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. What are the example of this reflection? Plane mirror and reflection from the still water. Remember, here we are using term still water. Still water means a water which is not moving. ठीक है? If the water is moving or it is a wavy form of water, then we are not able to see regular reflection. ठीक है? So this is all about the regular reflection. Now come to the next, which is diffuse reflection. So here in the image you can see this is what? This is a bumpy or irregular surface. ठीक है? There are three rays which are incident ray to this surface. They are coming to this surface. When they will enter here or they will hit, then they will get reflected. ठीक है? But they are, as you can see in the diagram, that they are not getting reflected in a particular manner or particular direction. They are getting reflected in a different direction. So why they are getting reflected in different direction? Because this surface is not smooth. The surface is not plain surface. So according to that surface, they are getting reflected in different direction. Okay, according to this, we can give the definition of diffuse or irregular reflection. When the reflecting surface is rough, means not smooth, rough or not smooth, the parallel rays falling on it are reflected in different direction. वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है? तो इस टाइम पर जो रिफ्लेक्शन होता है उस रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं? It is called diffuse reflection or irregular reflection. So what are the example of it? The reflection of light from wall of the room or a tree. ठीक है? किसी ट्री से हो रहा है, किसी ब्रिक से हो रहा है, बुक से हो रहा है. तो ऑल द थिंग्स विच आर नॉट प्रोड्यूसिंग इमेज और नॉट फॉर्मिंग इमेज, सो उससे जो रिफ्लेक्शन होता है और जितनी भी रफ सरफेस होती है उससे जो रिफ्लेक्शन होता है, दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, सी इन द केस ऑफ वॉल. ठीक है, ये वॉल है. एज यू कैन से दिस इज नॉट अ प्लेन सरफेस. क्या ये प्लेन सरफेस एकदम स्मूथ है? ये अगर आप टच करोगे यू कैन फील कि इसमें क्या है, थोड़े बम्प्स हैं. ठीक है, सो वी कैन इमेजिन इज लाइक दिस. ठीक है, तो ये क्या है, ये मान लो वॉल है. ठीक है, हम मान सकते हैं कि जो वॉल की सरफेस है ये कैसी है, इस तरह से है, डिफ्यूज सरफेस है ये. ठीक है, या फिर रफ सरफेस है ये. अब जो पैरेलल रेज यहाँ पर आएंगी, they will get reflected in different direction. As you can see in diagram also, the blue rays are the incident ray. They are coming to the wall or they are coming to the rough surface. But as you can see, they are not getting reflected in same direction. In particular direction, they are not going. As you see, you can see the first ray is going in this direction. Second ray is going in that direction. Means all the rays are going in different direction. And that's why we are not able to see our image in the case of rough surfaces. ठीक है, हम कब अपनी इमेज देख पाते हैं? जब जो रिफ्लेक्टेड रेज है they will come in a particular direction. अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी तो फिर हम इमेज जो है उस सरफेस पर अपनी देख सकते हैं. बट इन द केस ऑफ रफ सरफेस, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है दे स्कैटर. वो क्या हो जाती है, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है. दैट्स वाई they don't go in a particular direction and we are not able to see our image. ठीक है, अब यहाँ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि रफ सरफेस जो है वहां पर जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है और जो इंसिडेंट रेज होती है उनके बीच में जो एंगल बनते हैं, एज वी हैव सीन इन फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. तो इन द केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इन केस ऑफ रफ सरफेस, आर दीज फॉलो द सेम रूल? क्या ये रूल फॉलो करती है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करती है? Yes, they follow or they obey the law of reflection. How?
एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये जो फर्स्ट रे है विच इज ऑफ रेड कलर, सेकेंड रे विच ब्लू कलर एंड थर्ड रे विच इज ऑफ येलो कलर, ठीक है। सो दीज थ्री रेज आर व्हाट, दीज थ्री रेज आर इंसिडेंट रे ऑफ दिस सरफेस, ठीक है। ये तीनों रेज क्या है, इंसिडेंट रे है इस सरफेस के लिए। बट व्हेन यू सी कि ये जो तीनों रेज है वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। जो रिफ्लेक्टेड रेज है दे ऑल आर ऑफ सेम कलर एज यू कैन सी, ठीक है। तो ये जो रेज है दे आर रिफ्लेक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब आप यहाँ पर देखोगे एज यू कैन सी दैट दिस इज अ बम्पी surface. Why they are getting reflected in different direction? Because of this rough surface. क्योंकि ये सरफेस जो है स्मूथ नहीं है, इट मीन्स इनके अगर हम नॉर्मल बनाएंगे देन दीज नॉर्मल विल ऑल्सो नॉट बी इन सेम डायरेक्शन। सी फर्स्ट केस में आप जब नॉर्मल बनाओगे तो वो इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल बनाने के लिए जो नॉर्मल होता है इट शुड बी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, ठीक है। तो अगर हम इस सरफेस को परपेंडिकुलर एक नॉर्मल बनाते हैं तो ये इस तरह से बनेगा। तो अब आप यहाँ देखोगे कि ये जो एंगल है विच इज कॉल्ड एंगल आई और यहाँ जो एंगल है विच इज एंगल आर, तो इस केस में ये दोनों एंगल इक्वल है, मीन्स इन फर्स्ट केस दिस रूल इज फॉलोड। सेकेंड केस में जब ये जो रे आ रही है और यहाँ पर नॉर्मल जो बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बनेगा और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ जा रही है, तो आप देखोगे कि दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। इन थर्ड केस ऑल्सो ray is coming from this side and it is reflecting in this direction। तो अगर आप यहाँ नॉर्मल बनाओगे तो ये नॉर्मल बनेगा और इस केस में भी दोनों जो एंगल है बोथ एंगल्स आर सेम, यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो फॉलो होता है, ठीक है। आपको डायग्राम में देख के पता लग रहा होगा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो यहाँ फॉलो हो रहा है, बट जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो ये इमेज क्रिएट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मतलब स्मूथ सरफेस तो बहुत अच्छी हुई, क्योंकि स्मूथ सरफेस से वी आर गेटिंग आवर इमेज, बट इन द केस ऑफ रफ सरफेस वी आर नॉट गेटिंग आवर इमेज। अगर आप वॉल पे देखते हो तो अपनी इमेज नहीं देख पाते हो, बट नो, diffuse reflection is also important in our day-to-day life. How? See in diagram, this sofa, table, this lamp, all the things which is available in the room, you are able to see. Why? They are not in directly contact of sun and any light. ठीक है, क्यों हमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं? Just because of diffuse reflection. Diffuse reflection की वजह से क्या होता है कि जैसे ही सनलाइट इनडायरेक्ट वे में इन सब थिंग्स पर आती है, सो ये लाइट अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमें ये सारी चीजें नजर आती है, ठीक है। सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इमेज फॉर्म्ड होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम अपने सराउंडिंग की जो चीजें हैं वो देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि सनलाइट उन पे गिरती है, वो रिफ्लेक्ट करती है और वो लाइट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, और इसी वजह से हमें चीजें क्या करती है, नजर आती है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो what is regular reflection and what is diffuse reflection, ठीक है। So the reflection or the reflected rays are parallel to the incident ray. So what about the regular reflection? In the regular reflection जो reflected rays होती है वो always parallel होती है incident ray के, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो इंसिडेंट रे होगी वो भी पैरेलल होती है और जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो भी क्या होती है, पैरेलल। बट इन द केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी वो कभी भी पैरेलल नहीं होगी, दे विल गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, ओके। सेकेंड, इट अकर्स व्हेन द सरफेस इज स्मूथ। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, जब सरफेस क्या है, स्मूथ है, प्लेन है, पॉलिश सरफेस है। बट इन द केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन व्हेन इट विल अकर व्हेन द सरफेस इज रफ सरफेस, ओके। नेक्स्ट, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है दे मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। किस में जाती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है। हमने देखा था कि सारी रेज कहाँ जाती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है, दैट्स व्हाई दे क्रिएट इमेज। बट ऑन द अदर हैंड इन द केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दे स्कैटर्ड इन रैंडम डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू क्रिएट और फॉर्म अ इमेज। इसका जो एग्जांपल है, इट इज रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। हम प्लेन मिरर को रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में यूज करते हैं, और इन द केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द वॉल।
रिफ्लेक्शन से जो वॉल से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें हमें वॉल नजर आ रही है बट हमारी इमेज वॉल पे नजर नहीं आ रही। ठीक है, here you can see the images. In first image you can see this is what? This is the example of रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो जो वाटर है एकदम स्टिल वाटर है, ठीक है। सो आप एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेज देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जो ऊपर जो ट्रीज हैं इनकी इमेज यहाँ नजर आ रही है, बट हियर यू कैन सी द इमेज इज नॉट क्लियर। इमेज आपको मिल रही है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो प्लेन सरफेस होती है उसमें भी कभी कभी इमेज जो है वो स्कैटर हो जाती है। जो स्मूथ सरफेस होती है कभी कभी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करती है, जैसे कि ये वाटर है, ठीक है। ये एक प्लेन और स्मूथ सरफेस है, बट ये वाटर क्या है, वेवी है, थोड़ा सा हिल रहा है। तो हिलने की वजह से जो इमेज है वो आपको क्लियर नजर नहीं आ रही है। जैसे हमारे घर में मिरर होता है, वो जब खराब हो जाता है, उस पर थोड़े स्पॉट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें लगता है कि वो मिरर प्लेन है, बट अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें, क्योंकि हमारी जो नेक्ड आईज है उससे हम उसके बम्प्स को नहीं देख सकते, ठीक है, तो वो हमें स्मूथ लगता है, बट हमें उसमें जो इमेज नजर आती है अपनी, वो इमेज एकदम क्लियर इमेज नहीं होती। तो उस टाइम पे जो रिफ्लेक्शन होता है, वो रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो वी कैन से कि अगर स्मूथ सरफेस है तो उसके केस में भी हमें जो इमेज है वो स्कैटर मिल सकती है, या फिर जो इमेज है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर आए, ये जरूरी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम फॉर द असाइनमेंट सेक्शन। सो योर इन फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू जस्ट डिफाइन रिफ्लेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन को विद एग्जाम्पल डिफाइन करना है। थर्ड रिफ्लेक्शन में आपको बताना है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, और उसके बाद आपको बताना है कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, क्या इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन के जो लॉ है उसको फेलियर है ये, ठीक है। इट मीन्स डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल होता है या नहीं, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन में आपको मेंशन करना है अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। आपको बताना है कि किस केस में कौन सा रिफ्लेक्शन होगा। तो फर्स्ट में पॉलिश्ड वुडन टेबल है, चॉक पाउडर है, कार्डबोर्ड सरफेस है, मार्बल फ्लोर है विद वाटर एंड मिरर है, और पीस ऑफ पेपर है। तो ये 6 मैंने आपको केसेस दिए हैं। इन केसेस में आपको बताना है कि कौन कौन से रिफ्लेक्शन जो है वो अकर होंगे, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द लास्ट। थैंक यू।